Hello everyone, welcome to my channel Way to Physics. I am Sandhya and now I will be solving 2018 GATE Physics Part 3. Okay, so let's start. Here we will be solving questions 31 to 45. Okay, question number 31. If H is the Hamiltonian for a free particle with mass m, commutator H x plus H. Now you know that Hamiltonian for free particle is what? That is p square by 2m, right? Potential is 0 for free particle. So according to this, just by putting here x into p square by 2m, अब देखो हमने एक और किया था ऐसे x p स्क्वायर में निकालते हैं, x स्क्वायर p स्क्वायर में निकालते हैं. तो जब आपके पास दिस विल बी a b, अगर आपके पास b इस फंक्शन का दिस दिया है तो हम ये करते हैं डेल a बाय डेल x ए बी. इफ p ये x की फॉर्म में होता है, ये p की फॉर्म में होता है, राइट. और अगर ये दिस में दिया होता है तो हम करते हैं डेल b बाय डेल p a b, राइट. डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, राइट. अब ये देखिए पी स्क्वायर बाई 2m है, तो अगर हम इसके लिए करते हैं देन ये कितना आएगा आपके पास, विच इज 2p बाई 2m एंड एक्स पी. ओके, तो अब देखो 2p बाई 2m मीन्स p बाई m आपका बाहर, और xp का अगर हम करेंगे दैट विल बी 1, राइट. सो और आयोटा h कट, राइट. सो दैट विल बी x p बाई m आयोटा h कट. तो मतलब कि आपके पास क्या बाहर आ जाएगा, विच विल बी आयोटा h कट बाई m आउटसाइड एंड x एंड p itself. अगेन x एंड p इज व्हाट, आयोटा h कट. तो आयोटा h कट का स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर कितना बनेगा, माइनस, एंड दैट विल बी h कट स्क्वायर बाय m, राइट. सो दैट मीन्स योर b ऑप्शन इज करेक्ट वन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखिए, question number 32. A long straight wire having radius a and resistance per unit length r carries a current I. The magnitude and direction of pointing vector on surface of wire. Okay, अब देखो हमारे पास resistance कैसे होता है, that will be rho L by A according to resistivity, right. And rho हमारे पास कितना हो गया, according to this resistance into area, right. So it will be r pi a square, right. For long straight wire it will be area this, and according to this r by L is itself rho by A, and rho by A is what, that is r itself, right. According to this it will be, right, wall area into this. Now further r by L is small r, and then sigma is what, that is 1 by rho, right. And J is what, that is sigma E, and further E can be calculated, that is sigma by J. These are the formulas, right. So according to this, if sigma to us is what, that is I pi a square r divided by J, sigma value put kiye 1 by rho, right. Then it will be this I into pi r pi a square z cap along. Okay, J itself, let it be J by, okay, E is what, that is J by sigma, right. So J by sigma is itself, and it will be pi a square. Okay, so according to this it will remaining I r z cap, as this get cancelled out, right. Now further this is electric field, and magnetic field is what, that is mu naught I upon 2 pi a phi cap, right. Now we have to find pointing vector. So pointing vector will be, that is 1 by mu naught E cross B, right. So E is what, that is z cap, and R is what, that is phi. Now this is what cylindrical polar coordinates. So this is what R, rho, phi and z. So z cross phi will be in minus rho cap, right. So according to this we got it as formula, which is I r square 2 pi by a minus rho cap. Okay, that will be in minus rho cap term, and for further it will be s equals to minus I r square by 2 pi a rho cap. Okay, so that matches your option number I r square
I square r. Okay, just let me check. Is this I square r or further? Let it be mu naught I upon 2 pi a. Oh yes, it will be I square r, right? So that will be I square r. Okay, I square r by 2 pi a minus rho cap, and it will be, that is pointing inwards, sorry, yes, pointing inwards, minus rho cap, right? As rho cap is what, that is for the cylindrical perpendicularly outwards, but minus rho cap, then it will be perpendicularly inwards. Okay, pointing inwards. So that is your A option is correct one. Okay, now next one, question number 33. It says 3 particles are to be distributed in 4 non-degenerate energy levels. The possible number of ways of distribution for distinguishable particle and for identical bosons respectively. अब देखिए, for distinguishable particles we have to follow Maxwell-Boltzmann distribution, right? For distinguishable particles, and for according to this it will be, that is number of degeneracy gi raised to power ni, and degeneracy is what, that is 4 non-degenerate level, and particles is what, that is 3, so it will comes out to be 64. Okay, now these two options get rejected itself. Now that is from C and D option we have to select. Now for identical bosons, then bosonic transformation is what, that is distinguishable. Say it will be Ni plus Gi minus 1 factorial divided by Ni factorial Gi minus 1 factorial, right? So according to this it will be, that is 3 plus 4 minus 1 factorial, 3 factorial and 4 minus 1 factorial. So upon solving this we got it as 20. So that is your option number C is correct answer. Okay, got it? Now next one. It says the term symbol for electronic ground state of oxygen atom. A ground state of oxygen atom, that is for 16, 8O16, right? So that will, for this surface configuration is what, 1s2, 2s2, 2p4, right? 4 and 4, that is 8. So according to this it will be 1s2, 2s2, 2p4. Now 2p4 is what, that is for this L is what, that is minus 1, sorry, there is only 3, right? So that will be with 3 minus 1 0 1, right? Now 1 2 3 and 4 itself. Now this is the case for more than half filled. Okay, ये चीज देखिए हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स होती है और हमारे पास ऑप्शन में दोनों मिलेगा. ओके, ये मोर देन हाफ फिल्ड है तो हमारे पास जे जो है वो हायर वाला जे जो है वो हमारा ग्राउंड स्टेट पर बिहेव करेगा. ओके, एंड लेस देन हाफ फिल्ड के लिए, ओके, लेस देन हाफ फिल्ड के लिए जो जे लोअर जे होगा दैट विल बी एट ग्राउंड स्टेट. ओके, अब देखो ये कैलकुलेट करते हैं. टोटल हमारे पास स्पिन कितने आएंगे, दैट विल बी 1 2 3 4, दैट इज 4 इंटू 1/2 विच इज 2, राइट? सो अब देखिए एल कितना आएगा हमारे पास, डेल्टा एम sigma ml is what, that is minus 2 minus 1 right, plus 0 minus 1 which is minus 3, right? So according to this will be, that is okay 3. Now further delta m mod of delta L is this 3, right? So according to this L minus S, J is what, that is L minus S to L plus S, right? So it will be L is what, that is 1 itself, right? Minus 2 plus 1, yes, minus 2 0 and plus 1, sorry, this is plus 1 here. Okay, so that will be your minus 1,
right? 1, so mod of 1 is 1. Now according to this it will be 0 1, sorry, yes, 0 1 2. ओके, तो अब देखिए ये कितनी आएगी हमारे पास, हम कैसे दिखाते हैं स्टेट्स, दैट इज 2s + 1 lj. तो s कितना है हमारे पास 2, देन इट विल बी, सॉरी s कितना है, यस s विल बी 2, so it will be s is what, yes 2, it's sorry, s is 4, not 4, s is 2, half plus half, half into twice of half, right? 1 2 3 4, then it will be half 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 half, so it will be 1 only. एंड अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए ये सिली मिस्टेक्स होती हैं इनमें कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, तो ये कंफ्यूजन मत होइए. ओके, नाउ 2s + 1 इज व्हाट, दैट इज 3. ओके, एंड l इज 1, दैट इज p, और j कितना है हमारे पास 0 1 2. अब देखिए हायर j कितना है हमारे पास 2, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट हमारे पास होगी 3p2. ओके, अब देखो 3p0 भी हमारे पास ऑप्शन में है, तो यही मिस्टेक्स होती हैं और हमारे पास आंसर ये है. ओके, ये कभी क्या होता है कुछ बच्चे ये भी कराएंगे क्योंकि ग्राउंड स्टेट इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बट ये देखिए मोर देन हाफ फिल्ड है, तो हमारा हायर जे विल बी एक्ट एज ग्राउंड स्टेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The energy dispersion for electron in one-dimensional lattice with lattice parameter A is given this, where this the effective mass of electron near the bottom. अब देखो इफेक्टिव मास और डिस्पर्सन रिलेशन दिया होता है, ऐसे भी हमारे 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, क्या होता है इफेक्टिव मास, h कट स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर e बाय डी के होल स्क्वायर, डी के स्क्वायर, राइट. अब E आपको गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए k की रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर तक, देन यू विल गेट दिस, एंड ये आप इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. अब बोला है हमारे पास नियर द बॉटम ऑफ बेंड, दैट मीन्स k इज 0, एंड फॉर फर्दर ब्रिलियंट जोन इट विल बी k + -a, राइट, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन. So according to this, putting k is equals to 0, we got it as 2h cut square by a square omega. Okay, so that means your option number A is correct one. Okay, now next question. Amongst electrical resistivity, thermal conductivity, specific heat, Young's modulus and magnetic susceptibility, which quantity shows a sharp change at the superconducting transition temperature? ओके, देखिए ये कुछ हमारे पास ग्राफ्स होते हैं रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग. देखिए ये नॉर्मल के लिए होता है हमारे पास और ये सुपर कंडक्टर के लिए होता है ये चेंज. ओके, एंड दिस विल बी अकॉर्डिंग टू normal and this will be for superconductor with thermal conductivity, and this is for specific heat and this is for susceptibility. okay, तो अब देखो इसके अकॉर्डिंगली आपका शार्प कहां पर आ रहा है, रो पर, राइट, और हमारे पास सी पर, दैट इज शार्प इटसेल्फ, एंड फॉर susceptibility itself. So that is your option number B is correct one. Okay, next one. A quarter wave plate introduce a path difference of lambda by 4 between the two components of polarization parallel and perpendicular to optic axis. An electromagnetic wave with this is incident normally on a quarter wave plate which has its optic axis making an angle 135 degree with x axis. Okay, अब देखो जो गिवन आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है, ये कहां पर है, x और y पर, राइट. तो हमारे पास ये दो वेव्स का सुपरपोजिशन है, राइट, जो कि Ex और Ey की फॉर्म में है. इनका सुपरपोजिशन करने के बाद वो Ex + y E0 iota kz माइनस ओमेगा t बनता है, राइट. नाउ अब ये कितने हैं हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सुपरपोजिशन हमें क्या देता है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट विद फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू 0 इटसेल्फ, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, इफ वी हैव टू कैलकुलेट tan थीटा व्हिच इज Ey by Ex comes out to be 1 as it is, right, क्योंकि आपके पास कोफिशिएंट सेम है तो आपके पास कितना आएगा 1. दैट मीन्स थीटा आपके पास कितना आया 45, और ये थीटा हमारे पास कौन सा है, जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, राइट. सो देखिए अगर ये एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास 45 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला रिमेनिंग कितना रहेगा आपके पास 90 डिग्री, राइट. 135 माइनस 45 डिग्री इज व्हाट, 90 डिग्री. ठीक है, तो ये आपके पास 90 डिग्री पर मेंटेन रहेगी. ओके, तो अब देखिए लाइट इंसिडेंट किस पे हो रही है, क्वार्टर वेव प्लेट पे, फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री.
जब हमारे पास लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जो है वो क्वार्टर वेव प्लेट पर सेम ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर टू पोलर ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट, 90 डिग्री है, दैट मीन्स इट एमर्जेस आउट विथ सेम पोलराइजेशन, दैट इज लीनियर इटसेल्फ. ओके, सो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है आपके पास, लीनियरली पोलराइज्ड, यस, विथ पोलराइजेशन एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव, यस इट इज करेक्ट. यहां देखो क्या बोला, लीनियरली पोलराइज्ड बट विथ पोलराइजेशन एट 90 डिग्री टू दैट ऑफ इंसिडेंट वेव, बट इंसिडेंट वेव के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये नहीं है. ओके, सो आवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट वन, a p dot semiconductor slab carries a current I equals to 100 milliampere in magnetic field B equals to 0.2 Tesla as shown. One measures Vy and Vx. The mobility of holes in semiconductor is. अब ये देखो हमारा हॉल कोफिशिएंट से डिपेंड करता है, राइट. हॉल कोफिशिएंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VHT by IB which is also inversely equals to 1 by NE, राइट. अब देखिए RH हम गिवन, हमें क्या 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 गिवन है, हमें VH गिवन है, थिकनेस गिवन है, करंट गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है. सो वैल्यूज पुट अप करने के बाद हमारे पास आर एच इज व्हाट, दैट इज दिस. ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कैसे एग्जिस्ट करेगी, दैट इज ई वी एक्स बाई डी, दैट इज लेंथ. सो देखिए अब कितना दिया है, वी एक्स है हमारे पास 2 इंटू 2 मिलीवोल्ट एंड देन एक्स लेंथ इज व्हाट 10 मिलीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी 1/5 वोल्ट पर मीटर. Now current density is what, that is I by A. So according to this, current by area which is length into thickness, right? So according to this, length into width into thickness, right? So according to this we have calculated, that is okay, area length into width, not thickness. Okay, length into width, it will be current density is what, that is 2500 ampere per meter square. Okay, now further after finding current density, then J is equals to sigma E, then sigma is equals to J by E. So by putting values here, it will be 12500 ampere per volt per meter. Now sigma is itself NE mu, right? So then putting values here, and 1 by NE is what, that is RH itself, and by putting values here, we got it as 1.562. So this is the answer. Okay, next question. An N-channel FET having gate source switch off voltage at VGS of -2 volt is used to invert a 0 to 5 voltage square wave signal as shown. The maximum allowed value of R would be. अब हमें ये किलो ओम में बतानी है up to 2 डेसिमल. ओके, अब देखिए VGS अगर आपके पास -2 से बड़ा होगा तब आपके पास कितनी आएगी, 0 वोल्ट, राइट. अकॉर्डिंगली देखिए, और अगर -2 वोल्ट से हमारा बड़ा होगा देन इट विल बी प्लस वोल्ट, राइट, दैट विल बी 5 वोल्ट. तो अगर इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं देन इट विल बी, दैट इज 5 माइनस ऑफ -12, करंट हमारे पास R प्लस 1 प्लस R, राइट. नाउ इट विल बी -2 की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होता है, राइट. सो यहाँ से हमारा R कितना आएगा, दैट विल बी योर 0.7 किलो ओम. ओके, सो दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट वन. 4 MeV gamma rays emitted by the de-excitation of 19F are attributed, assuming spherical symmetry, to the transition of protons from D3/2 state to D5/2. Okay, transition कहाँ से है, 3/2 state से 5/2 पर. If the contribution of spin orbit term to total energy is written as this, the magnitude of C. अब देखो E इक्वल्स टू सी एल डॉट एस, ये हमें गिवन है कि ये इस फॉर्म में लिखा गया है. ओके, अब L डॉट एस देखिए क्या होता है, J क्या होता है हमारे पास L प्लस एस, राइट. J इज इक्वल्स टू L प्लस एस, स्मॉल ले लीजिए. तो हम L प्लस J स्क्वायर करेंगे देन इट विल बी L प्लस एस होल स्क्वायर. उसके टर्म्स में हम वहां से ये वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट. अब हमारे पास J कितना है, L प्लस 1/2 है और L माइनस 1/2 है, और S कितना है हमारे पास 1/2, राइट. So accordingly हम values put up करते हैं then it will comes out to be 2L plus 1/2. Okay, so delta E निकाला है देखो ये हमने. Okay, delta E मतलब पहले हमने L plus 1/2 के लिए लिया, फिर L minus 1/2 के लिए लिया, उसके बाद कैलकुलेट किया ये चेंज माइनस करके. Okay, so ये हमारे पास इसकी फॉर्म में आ गया है डेल्टा E, दैट इज C एंड L डॉट S की वैल्यूज पुट अप कर दी. ओके, तो यहाँ से हम C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे विच इज व्हाट, दैट इज 1.6 MeV. Okay, so this is your answer.
Now next one. An alpha particle is emitted by 230-90 pH nucleus, assuming the potential to be purely coulombic beyond the point of separation. The height of Coulomb barrier is. अब देखिए क्या बोला है, हमारे पास 230-90 TH2 अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई इज एग्जिस्ट, एंड हमारे पास अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, दैट इज 2He4. तो ये आपका 90 - 2 दैट इज 88 लेफ्ट, एंड एक्सेप्ट 4 इट विल बी 226, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस अब हमारे पास हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्या होती है, K 88 हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई का एंड 2E हमारे पास अल्फा पार्टिकल का अपॉन R. ओके, अब देखिए R हमारे पास टोटल जो हमारे पास सेपरेशन होगा दैट विल बी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड वहां से जो डिस्टेंस होगा वो, करेक्ट. तो ये हमारे पास एडिशन करने के बाद कितना बनता है. अब देखो R क्या है आपके पास, A⁻1/3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और R0 की आपको वैल्यू भी गिवन है. तो अब देखो ये तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, जब हमें पता लगा अल्फा पार्टिकल निकल गया तो ये रिमेनिंग है, राइट. तो यहाँ से आप ये वैल्यूज रखिए, दैट विल बी 226 1/3 एंड 4 1/3. कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, R0 की वैल्यू रखेंगे, देन यू गॉट इट एज 9.98 2.218 फर्मी. ओके, अब देखिए E² अपॉन 4πε0 या फिर E² Ke² is what, that is 1.44 MeV Fermi. ओके, तो अब ये वैल्यूज पुट अप की हमने और हमारे पास 88 into 2 1.44 एंड देन R is what, that is 9.982. ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आती है 25.388 MeV. Okay, so your answer is what, 25 point up to 2 decimal, then it will be 28 MeV. Okay, now next one. Yes, for the transformation Q and P to given us and to be for the transformation to be canonical the value of alpha. अब देखो ये क्वेश्चन भी आता है काफी बार, Q गिवन है, P गिवन है, ठीक है. कंडीशन क्या बोलती है कि हमारे पास कैनोनिकल कॉन्जुगेट QP के टर्म्स में 1 आना चाहिए. तो आप पहले डेल बाय डेल Q करेंगे, डेल बाय डेल P करेंगे एंड देन डेल बाय डेल P एंड देन डेल बाय डेल Q. तो बाय हमारे पास प्रोसेस बाय डेफिनेशन आपके पास डेल बाय डेल Q, डेल P बाय डेल P माइनस डेल Q बाय डेल P, डेल P बाय डेल Q, ये वैल्यूज इक्वल रखेंगे. अब देखो इसको हमें ये मल्टीप्लाई करना है एंड देन माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करना है. ओके, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई. अब ये देखो क्या आपके पास एक्सपोनेंशियल अल्फा वैल्यू निकालनी है तो आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू से सीधा देख लीजिए कि यहाँ पे आपकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी है, 0. तो अब देखिए ये कितनी बनेगी, -1 + 2 अल्फा -1 + 2 अल्फा माइनस अल्फा -1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स पावर हमारी एडअप हो जाएंगी. तो ये कितनी बनेगी हमारे पास, अल्फा -2, राइट. अल्फा -2 को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, देन अल्फा इज इक्वल्स टू 2. Okay, so 2 is your answer. Now next question. It says डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है और वैल्यू बतानी है. ओके, अब देखो d² - 2d + 1 = 0 f(x) की टर्म्स में, राइट. अब यहां से कैसे आएगा, देखो -b + √b² - 4ac, ये तो कैंसिल हो गया. तो दैट इज आपके पास दो इक्वेशन सेम आई है, 1 + 1, और सेम के लिए हमारे पास कंडीशन होती है c1 + c2x = ex. ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन होता है, राइट. सो देखिए अब ये वैल्यूज पुट अप करने के बाद x 0 है, एट x = 0 f = 1, f(x) = 1. सो वैल्यूज पुट अप करेंगे, वहां से हमारे पास c1 = 1 कैलकुलेट होगा, देन x = 1 f is 0, देन यहां से हमारे पास वैल्यू पुट अप करेंगे, देन c2 - 1 होगा, c1 की वैल्यू रखेंगे एंड देन c2 - 1. ओके, अब देखिए फर्दर f(x), ओके, f(x) हमें अब कितने के लिए निकालना है, 0.5 के लिए, c1 c2 की वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास ये फंक्शन बनता है. ओके, देन यहां से हम वैल्यूज रखते हैं 0.5 की. ये अब आप एक्सपोनेंशियल देखो, e की वैल्यू वैसे तो होती है हमारे पास 2.718, ओके, बट आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि रूट करना है, देन इट विल बी योर 0.84 और हमें कहां तक बताना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, सो इट विल बी 0.82. ओके, so this is your answer. Now last question. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45. It says absolute value of integral
ये हमारे पास हमें इंटीग्रल गिवन है और ओवर द सर्कल भी गिवन है कंडीशन, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमें वैल्यू बतानी है इंटीग्रल के लिए। ओके, देखिए सबसे पहले हम पोल्स निकालते हैं। 5z, पहले सबसे पहले हम सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये कितना गिवन है, z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर की फॉर्म में। तो z नॉट आपके पास क्या है 1.5, रेडियस कितना है 1। अब अगर 1.5 से आप बनाते हैं, रेडियस विल बी 2.5 टू 0.5, राइट। ओके, सो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा हमारे पास। अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं पोल्स। 0 z डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं। z स्क्वायर माइनस 4 दैट इज z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विच विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑल्सो दैट इज a माइनस b a प्लस b। सो पोल्स कितने आते हैं हमारे पास, +2 एंड -2। अब देखिए -2 पोल कहीं आपका यहाँ पे आएगा और +2 पोल कहीं 1.5 से 2.5 के बीच में है, सो दैट विल बी 2 ओनली, राइट। अब ये तो पोल आपका आउटसाइड हो गया, राइट, तो ये वाला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम रेसिड्यू निकालेंगे सिर्फ z इक्वल्स टू 2 पर, तो हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे, देन इट विल बी z इक्वल्स टू 2 वैल्यू रखेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 2, ये आपके पास आएगा दैट विल बी 40 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 50, 13 आएगा आपके पास, राइट। देखिए 40 प्लस 12 13। ओके, अब आपके पास इंटीग्रल के अक्रॉस हम करेंगे 2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रल। ओके, क्योंकि हम ये एंटी क्लॉकवाइज में ही कंसिडर करते हैं, राइट। तो अब ये आपके पास गिवन है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 81.64 आयोटा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके, देखिए 45 क्वेश्चंस डन। नाउ our 10 remaining questions will be soon uploaded. Okay, so stay connected, keep supporting, like, share, comment and subscribe also. Okay, I hope you are enjoying this series, so please stay connected। and देखिए लास्ट के जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 18, 19, 20, 21, इन पे ज्यादा फोकस करिए। और तो देखो हमने की है, ऐसी बात नहीं है अब, लेकिन वही रिपीटेड भी होते हैं, तो ज्यादा फोकस लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली भी रखिए। और बाकी देखो रिवाइज तो हमें सब कुछ करना ही है, राइट, तो सब कुछ रिवाइज भी करते रहिए ताकि, और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, है ना, यही हमारी सबसे ज्यादा गलती होती है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।